का करीब आना, उसमें भी इंडिविजुअल्स भी हैं, जिब्रान नासिर हैं कराची में जो कि कंसिस्टेंटली इश्यूज के ऊपर बोलते रहते हैं। तैमूर की मैंने बात की, आसिम सजाद की बात की, इस तरह और कई आपको नौजवान मिलेंगे जो कि एक जिनकी फॉलोइंग बन रही है। How do we bring them together is one of the long-term questions. उसमें मैंने NSF की भी बात की, बाकी भी ये एक बड़ा important सवाल रहेगा as we rebuild the left. Yes, I have a question. So, Ammar, I totally believe you when you say that there's all this organizing going on in Pakistan right now, and I think with the right support, you can build the sort of infrastructure you're talking about that will make you a force to reckon with in electoral politics in Pakistan. But my question to you, you just mentioned violence, the use of the state violence to repress, that historically has decimated the left in Pakistan and is going on to this day, right? So do you think the kind of political revolution that you're talking about and that all of us here are so eager for can ever come about without there being a militant wing to these leftist efforts in Pakistan? For every Martin Luther King, there was a Malcolm X. For every Gandhi, there was a Bhagat Singh. You know, there was a Sinn Féin and IRA in Ireland that won their freedom. So, I'm just asking you, how can this happen without that aspect to your to the So if you shut down the camera, फिर मैं मैं ना हमारा militant wing अभी बन रहा है और अभी से expose हो जाए। But power तालिबान के हक में जाएगा, हमारे हक में नहीं। There was a recent coalition of recent effort to there was a coalition of all these left-wing parties in which. Yeah, we all are part. Yes, so was it? वो अभी उसी के इर्द-गिर्द हम जो talks की series कर रहे हैं, उसी के इर्द-गिर्द कर रहे हैं। But going back to your question as well, I think इस वक्त जो सवाल है हमारे लिए, we're not in a phase of taking the initiative and attacking the state. In the sense के rebuilding का process है कि पिछले 4-5 साल में हम जो pieces सारे बिखर गए थे पिछले 20-25 साल में, उस बिखरे हुए चीज़ों को हम जोड़ रहे हैं। इस वक्त हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो ये नहीं है कि हमने से अगर एजेंसीज वाला मुझे मालूम है 2-3 दफ़ा उठा के लेके गए, तो हमारा लाइन ऑफ डिफेंस ये नहीं होता कि मेरे पास गार्ड्स इतने हैं कि एजेंसियों के ऊपर हमने फायरिंग कर देनी है अपने आप। हमारा डिफेंस ये है कि पीपल लाइक योरसेल्फ रेज दिस इशू वेरी क्विकली, which people do. Luckily, students हैं हमारे, बाहर लोग बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं, and then we have a group of lawyers who act very quickly. We're very lucky कि असद जमाल जो कि जुनैद हफीज के भी वकील थे, वो फौरन आ जाते हैं। सलमान अकरम राजा, who's currently the lawyer for इमरान खान, इससे पहले नवाज शरीफ के भी रहे हैं। We're very lucky कि उन्होंने कई दफ़ा आके मेरे लिए भी केस लड़ा, जब हादसे में मुझे उठा के लेके गए थे तो वो आके और उन्होंने बेल दिलवाई। These are powerful people, and how do we create a network that can protect our people in difficult times? That's the first question जो इस वक्त हमें होता है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश इस वक्त ये होगी, if I were let's say an agency वाला, मेरी ख्वाहिश ये हो कि लेफ्ट वाले हथियार उठा लें, जैसे उनकी ख्वाहिश ये है कि मंजूर फलस्तीन हथियार उठा लें, क्योंकि अगर आप हथियार उठा लो उनके लिए क्रश करना बहुत आसान, आप उन्हें डायरेक्ट, क्योंकि हम उतने हथियार तो ले नहीं सकते जितने इस वक्त पाकिस्तान स्टेट के पास इतने हथियार हैं, वो नहीं होना। लेकिन जो May 9th वाला भी वाकया हुआ है, which is why I think they allowed it to happen, ये अभी PTI वाला, so that they can create a justification for destroying the party. और इसलिए political leadership in the current situation, at least from the perspective of the left, it has to be very clear कि अगर हमने mass politics करनी है, we can be militant in the sense of our struggle, but without a militant wing, like without picking up guns. Militant in the sense कि हम DC office घुस जाते हैं, it's a militant action. हमने ऑक्यूपाई कर लिया, 3 घंटे तक हम अंदर रहे, उन्होंने कहा पर्चे कर देंगे, पुलिस बुला ली, हमें घेरे में ले लिया, we didn't leave and we were ready to get arrested,
Those actions are very important if we want to take the movement forward. But my own personal feeling is that in circumstances picking up arms may actually hamper the movement, may not take it forward. बाकी जब कैमरा बंद होगा तो मैं आपको अंदर ही बात जी सही हमारा एक philosophical question है, larger question कि if you think about it, in the 80s, religion was the winning narrative in a way. अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा है corruption was the winning narrative. Going forward, how can we make sure sitting here progressive left is the winning narrative? उसके लिए क्या करना चाहिए? I think that is the important question for me. किस तरीके से आगे चलें? How can we create those roads जिस पे जो है काम कर सकें कि ठीक है अगर ये next जो है अगर नहीं है तो the one after becomes the progressive left narrative. No, you're right. Again, हम left वाले we agree on a lot of core issues. The core basic issue तो हमारी जो politics का कि we're part of a tradition जिसमें class becomes very important and exploitation becomes central. It's not just corruption which is the problem. Corruption is a symptom of a system that is premised upon the exploitation of the masses. So it's more like आप ईमानदार बंदा भी exploit कर रहा है. That's because it's the system, it's not the individual. जो tactical सवाल है वो ये है कि आपको अपनी media strategy कैसे बनाएं. That's a very real question and that's a question we've started asking. सबसे जो अब तक अच्छा मीडिया स्ट्रैटेजी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी थी वो जिब्रान की. हम डिफरेंट काम कर रहे थे, हम स्टूडेंट्स में काम कर रहे थे, ग्राउंड पे काम करते थे. ही वाज वेरी गुड एट कोटिंग एंकर्स एंड बीइंग ऑन सोशल मीडिया, जो कि सबको करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग हमें भी करना पड़ेगा. और part of the discussion we're having is how do we build a very strong social media team, जो कि social media की इस तरह की टीम जो कि narrative को बहुत तेजी से push कर सके. And that's something that I think we should definitely work on. And if we can build that, I think हमारे पास we have enough people with a good narrative to win the argument. Yeah, I think that I'll just add one thing. I think PTM, not PDM. I think they have created a very good narrative. I think, right? कि जी उन्होंने जो आप जो बात कर रहे थे बड़ी क्लैरिटी है उसमें कि जी जो peaceful one and two कि जी क्या करना है, what is right and what is wrong, right? और उस बात पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं. Yes, it's right now it's only in one province, but how do you take it elsewhere, right? So the same thing I feel like a progressive left कि जी उसी तरीके से जो है वही जो भी एक कंस्ट्रक्ट है उसका how can we take it forward? Absolutely. जी अच्छा हाँ जज वो इजाज साहब भी थे जी. आपने पहले चूंकि पूछा इजाज साहब की मेरी बारी है वैसे, फिर उसके बाद हम आते हैं. जी इजाज साहब जी और आप बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आपने पाकिस्तान का इतिहास में खींचा है. आपने बात की कि अपनी पार्टी के हवाले से पाक बदर साहिवाल इंतजार में आप जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. तो एक सवाल मेरे लिए क्या है कि पहले जो तरीका था लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म का कि वो अगर अलग जगह है राजपुर है तो आप वहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए आप वहाँ बड़ी सर्कल लेके हैं, किसान कमेटी बना दी. तो ये जो मैकेनिज्म थे और आज भी है. अब ये जो आप जा रहे हैं शहरों में फॉल्ट आउट में, तो दो बातें मैं पूछना चाहता हूँ आपसे. एक कि आप क्या फॉर्म है, क्या मैकेनिज्म है, वो क्या स्ट्रक्चर है जो आप वहाँ इस आउटरीच के लिए इस्तेमाल करते हैं. और इससे रिलेटेड बात पूछना चाहता हूँ ये है कि जैसे आपने पहले कहा कि एक नई स्पेस ओपन हुई और ये एक खेल बदल रहा है, पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, पैराडाइम चेंज की वो इधर भी जा सकता है. तो इसमें ये आपके
कि जो ये आउटरीच है इसमें आप इस दौरान में 5 महीने आपसे कहा गए क्या आपने सीखा? यदि what is your learning point? What do you see that would not work and another way is needed? And if you have come to that conclusion कि कोई नई फॉर्म होनी चाहिए, डिस्कोर्स का तरीका नया होना चाहिए, जो ग्रैंड नैरेटिव की उसको पहले बात कर रहे थे वो ग्रैंड नैरेटिव आज उस तरह मेरे हिसाब से उस तरह से जैसे जागीरदारी सरमायादारी एंटीमिलिटरिज्म अमेरिका मुर्दाबाद घोड़ा कर देंगे वो अपना तरीका काफी है। कुछ और तरह मसला वही मौजूद है ये और एग्री है, लेकिन उसका एक तो फॉर्म चेंज हो गई है और अब उसका इजहार भी चेंज होना चाहिए। तो ये दो बातें मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अब आप करते जाके वहाँ कैसे आउटरीच करते और क्या लर्निंग है आपकी? थैंक यू। आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन अगर एक ही में हम कर लेंगे। अच्छा एक और ले लो क्वेश्चन इनका। जी जी एक्चुअली आई एम नॉट अ सोशल साइंटिस्ट और पाकिस्तान से बहुत दूर हूँ, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं आपकी तरह, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एक्सप्लोरिंग पॉपुलेशन है वहाँ और श्रिंकिंग नेचुरल रिसोर्सेज हैं फॉर दैट पॉपुलेशन और फॉर दैट टाइनी इकोनॉमी दैट ह्यूज आर्मी। सो अगर आप देखें पर कैपिटा एक्सपेंसिव आर्मी के पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा होंगे। ये बांग्लादेश आवर पुअरेस्ट प्रोविंस मशरक़ी पाकिस्तान उसने इनको कंट्रोल किया है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। उन्होंने इसको चेंज कर दिया। दे डोंट हैव लैंड, दे डोंट हैव नेचुरल रिसोर्सेज। ओनली औरतों को एम्पावर करके कपड़े सीकर, नॉट इमरान खान की सिस्टर की तरह, उन्होंने कौम को रिच कर दिया है और उसकी हालत बदल दी है। दे आर रिचर देन इंडिया, दे आर रिचर देन पाकिस्तान। तो जब तक हम we don't rein in the real elephant which is eating us up, कुछ नहीं होगा। चंदे से आप एक जगह छोटे से पॉइंट पे चेंज ले आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा डोंट डू दैट, दूसरी जगह ले आएंगे, तीसरी जगह ले आएंगे। आपने जो बात कही थी, मैं नहीं कह रहा मिलिटेंसी हो, बट समथिंग नीड्स टू बी डन, अदरवाइज वो हमें खाते रहेंगे और हमारे लोग कहेंगे जरदारी खा रहा है, वो शरीफ खा गया, इमरान खान, और खा जो रहा है उसका कोई नाम नहीं लेने की जरूरत कर सकता है। That's a problem of that country. जी अब हमारा एड्रेस कर ले वो जो लोग जी अगर आप वाले से स्टार्ट कर लें कि आई थिंक इस पे हम सब जो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में अगर प्रोग्रेसिव हम कह रहे हैं ना, लिबरल प्रोग्रेसिव भी कह रहे हैं, सोशलिस्ट लेफ्टिस्ट, तो एक अलग बात है। सबकी ये आपस में माय फीलिंग है कि हम सबकी ये क्लैरिटी है कि मेन जो प्रॉब्लम है, अगर कोई एक आप इस पॉइंट आउट कर सकते हो कोई इदारा, तो वो हमारी बहादुर पाक फौज एज एन ओवरग्रोन ओवर डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन, जो कि ना सिर्फ इकोनॉमी पे बोझ है, वो पॉलिटिक्स के अंदर भी डिस्टॉर्शंस लेकर आती है, वो इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस भी क्रिएट करती है। एंड पाकिस्तान इज टू रिच, टू पुअर टू मेंटेन सच अ रिच आर्मी, इसमें तो कोई शक नहीं। जो हमारे पे इल्ज़ामात लगे हैं मुल्क दुश्मनी के भी और जो सारे प्रॉब्लम हुए हैं, वो इसी वजह से हुए हैं कि हमने मुसलसल मिलिट्री को टारगेट किया। ये नहीं कि मिलिट्री खत्म हो जानी चाहिए या उसके ऊपर हमले कर देने चाहिए, but we want them out of politics and we want them out of the economy. ये दो चीज़ें हैं, ये काम मिलिट्री का नहीं है, लेकिन इन दो चीज़ों की वजह से, पॉलिटिक्स इकोनॉमी की वजह से, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से एक इम्बैलेंस है हमारे पूरे माशरे में, एक डिस्टॉर्शन। It's a force that creates a distortion in our politics. उसमें से चीज तय में करती है how do we fight them, how do we defeat them. One method is जिसके ऊपर जैसे हमारी हमसे बड़े जो थे बहुत सारे कहते थे कि एंड में लेफ्ट वाली बात बाद में आएगी, अभी आप डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा।
तो पीपल्स पार्टी को स्ट्रेंथन करें, फिर गांधी जी को स्ट्रेंथन करें, आजकल हमारे दोस्त कह रहे हैं कि पीटीआई को स्ट्रेंथन करें, इसको पुश बैक करें। माय फीलिंग इज कि ये पार्टीज जो हैं स्ट्रक्चरली डिपेंडेंट हैं ऑन दिस 100%. पैरासाइट, 100%. तो ये एंड में आके फ्लिप करती हैं। और अभी हाफिज साहब एक कॉल कर देना, जब मैक्सिम वॉटर्स ने एक कॉल कर दी तो खान साहब फ्लिप कर गए अमेरिका वाला। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश करके मुझे निकाला और आप अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करें। उनका कि फौज को आप अकाउंटेबल करें। और इसी तरह अगर फौजी को फोन कर दे वो फ्लिप कर देंगे। So the problem, they don't have a problem with the parasitic nature of the institution. They have a problem with what their relationship to that parasite is. Yes. Absolutely. And this is a fundamental difference जिसके ऊपर हमें clarity होनी चाहिए कि our problem is with this parasite, not with how it treats us. जिसमें से तो ये बात भी निकलती है कि we need to fight back. Fight back करने के लिए we have to build our own power. कहने को तो हम रोज ही हम ट्वीट करते हैं जर्नलों के आगे, ट्वीट से कोई फौज पीछे नहीं है। We have to build our power and I have a little, मतलब मेरा एक inclination है, माओ को मैं पढ़ता हूँ। I think the strategy of a base area is a good strategy. I think it's a politically very smart idea कि आप अपने strongholds बनाएं, इसके बजाय कि अपने आप को स्प्रेड थिंक करें। एक एरिया में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएं, दूसरे में बनाएं, तीसरे में बनाएं, चौथे में बनाएं, so that you are in a position to first hold your defenses. अभी मुझे पता है कि अब हमारे किसी भी बंदे पे वो हाथ लगाएंगे, हम अगर आज से 5 साल पहले 100 बंदा निकाल सकते थे, अब हम 1000 बंदा निकाल सकते हैं quickly, which is something People's Party may not be able to do in Lahore. तो हमारी एक पोजीशन है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा relatively safe फील करते हैं। अगर ये बढ़ती जाए इस पोजीशन में आ जाओ कि आप लाख बंदा निकाल सकते हो, कभी नहीं। That's a revolution. That's when you push them back firmly, which then leads to your argument. I think जो form है, जो एक चीज मैंने सारे अरसे में सीखी है वो ये है कि और ये मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी सीखी है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीखी है कि जितना हम लोगों को सिखाते हैं उतना ही हमें लोगों से सीखना चाहिए। और लोग क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन इतनी हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पल्स किधर है। मैं इतना आपको कहूँगा कि जो जनरल बात है ना, जो आपने की थी एंटी जागीरदारी, एंटी समाजदारी, एंटी इंपीरियलिज्म, वो जनरल बात अभी भी लागू होती है। वो अभी भी आप करेंगे, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा किसी भी जगह पर। दैट इज स्टिल पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। बट जो हमें ये देखना है कि इन इलाकों में कॉन्ट्रडिक्शंस क्या आ रही हैं। और एक मुझे लगता है कि जो लोअर मिडिल क्लास है बहुत बड़ी एक फोर्स बन रही है हर इलाके में। ये जो गरीबों के इलाकों में डॉक्टर्स, नर्सेज, लॉयर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, इन सबको अपने साथ जोड़ना, जो ऑलमोस्ट वर्किंग क्लास है, बट लाइक लोअर मिडिल क्लास आप कह लें, जैसे 50,000 रुपये कमाते हैं। सो आई थिंक वर्किंग क्लास, बट एक प्रिंसिपल है, इन लोगों को साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे बिकम मोर एंड मोर इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि स्कूल्स की तादाद बढ़ रही है, उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उनके स्टूडेंट्स हर जगह हैं, फैमिलीज हैं, पेरेंट्स हैं। सो उनको साथ जोड़ने के लिए जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप यू आर एबल टू रिलेट कि उनकी नीड्स क्या है वो समझने की। और उसी में जो ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म है, वो पहले भी जो सवाल हुआ था लोकल गवर्नमेंट का, आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज होना चाहिए एट द लेवल ऑफ द यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल पे अगर लेफ्ट की पार्टी मौजूद होगी तभी पार्टी बनेगी। यूनियन काउंसिल, एक यूनियन काउंसिल लाहौर शहर में हैज अबाउट 7,000 no it has 5 यूनियन काउंसिल है ना, 35 to 40,000 वोटर्स, 6-7 हज़ार पे आप एक यूनियन काउंसिल जीतते हो। अगर उस जगह पे आपके पास 20 लोग भी एक्टिव तो आप उस यूनियन काउंसिल में आपकी प्रेजेंस अच्छी खासी है। लाहौर में 274 यूनियन काउंसिल्स, लालपुर में तकरीबन 125। इसी तरह अगर आप आगे चले जाएं, इवन जो टोबे वगैरह में विलेज काउंसिल उन्हें कहते हैं, सारे टोबे जो हैं वो दर्जनों के हिसाब से 15 to 20 people in
all of these union councils. If that is a target जो 5 साल में आप पूरा कर लें, 10 साल में भी कर लें, you're in a position to defeat the bigger parties. Yes, especially. हल्का लाहौर पे कौन सा है? ये PP 159 है, ये है कैंची से लेकर आप जहाँ पे पैकेजेस है ना, वहाँ से लेके आगे चुंगी मुसल, कसूर वाले से। चूंकि